میرے اور سرکار کے بیچ میں تلخیاں پیدا ہوئی, مجھے شو کاز نوٹسز ملے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں امریکہ بھی چلا گیا. جب تک اوپر تبدیلی نہیں آئے گی تب تک نچلی لیول پہ تبدیلی بالکل نہیں آتی. غلط فہمی ہے بھارت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ کشمیریوں کو, جموں والوں کو, لداخیوں کو آن بورڈ لیے بغیر اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. لیکن میں اپنے آپ کو اس ریاست کا ایک باشندہ سمجھتا ہوں. میرے لیے کٹھوا اور کپوارہ میں کوئی فرق نہیں. ناظرین, کے ٹی وی اردو کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسعود بخاری. بڑی خبر آپ کو بتائے دیتے ہیں جس پہ آج مفصل بات ہم کریں گے, اور اس خبر میں دکھائیں گے کہ ڈاکٹر شاہ فیصل کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھی بالآخر وہ بالکل صحیح ثابت ہو گئی, اور اس طرح سے آج ڈاکٹر شاہ فیصل نے اپنے عہدے کو مکمل طریقے پر چھوڑ دیا. یعنی کہ انہوں نے جے کے پی ایم کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے اپنے عہدے کو آج خالی کر دیا, اور اس طرح سے مکمل طریقے پر جو وہاں پر میٹنگ چل رہی تھی جن میں 10 ایگزیکٹو ممبران تھے, جس میں فیروز پیرزادہ جو وائس پریزیڈنٹ تھے جے کے پی ایم کے, ان کو فی الحال نامزد کیا گیا ہے صدر کی حیثیت سے. وہ پارٹی کی دیکھ ریکھ کریں گے. فیروز پیرزادہ کے بارے میں بتائے دیتے ہیں آپ کو کہ وہ ایک بہت ہی منجے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس مین رہے ہیں, اور ملک کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ممالک میں بھی انہوں نے تجارتی سطح پر کئی ایک نوجوانوں کو ایڈجسٹ کر کے رکھا ہوا تھا. لیکن شاہ فیصل کا آج کا استعفیٰ اس لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ شاہ فیصل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شاید اب وہ پھر دوبارہ رخ کریں گے یا تو 7 سمندر پار, یا پھر واپس آئیں گے ایڈمنسٹریٹو سروسز کے اندر جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں. آپ کو یہ بات بھی بتائی دیتے ہیں کہ پارٹی کے لیے جو نامزد چیئرمین تھے جاوید مصطفیٰ میر, جو بہت پہلے پی ڈی پی کے اندر سے مستعفی ہوئے تھے, اور مانا جاتا ہے کہ وہ بھی جے کے پی ایم کے اندر ایک بہت اہمیت کا عہدہ رکھتے تھے, لیکن انہوں نے بھی آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. آگے کیا کچھ اس میں پہل ہوگی اس سلسلے میں آپ کو باخبر کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے, اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ پارٹی کے لیے جو نامزد صدر ہیں فیروز پیرزادہ, ان کو ہم باضابطہ طور پر اسٹوڈیو میں لانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ پارٹی کے اس سارے جو عمل ہے, جو گزشتہ دنوں سے اس میں پالیسیز چینج ہوتی رہی اور شاہ فیصل نے مکمل طریقے پر انکار کر دیا اب کہ وہ جو سیاسی عمل کشمیر کے اندر ہے وہ جلدی شروع نہیں کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے جو اپنی دکھائی ہے, اس میں خدشے دکھائے ہیں, ان کے حوالے سے جو کچھ بھی باتیں ہوں گی وہ آپ تک لانے کی کوشش کریں گے, اور آج کے پروگرام میں مفصل بات چیت بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ آخر شاہ فیصل جب سیاست میں آئے تو کیا تھا اور اب کیا ہے. کہ کیا ڈاکٹر شاہ فیصل جموں کشمیر پیپلز موومنٹ بنانے کے بعد پیپلز موومنٹ کو شاہ فیصل واقعی طور پہ اپنی جماعت کو چھوڑ رہے ہیں یا سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کو آج پہلے بتائے دیتے ہیں, اور اس خبر میں ہم آپ کو ایک انٹرویو کے کچھ کٹس بھی دکھائیں گے, جو انٹرویو اتفاقاً کسی اور چینل میں جب میں کام کر رہا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ ہی کیا تھا. اتفاق یہ ہے کہ آج شاہ فیصل کے بڑے نزدیکی لوگوں سے ہماری بات ہوئی اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ شاہ فیصل کے حوالے سے جو خبریں گزشتہ 2 دنوں سے بہت زیادہ گشت کر رہی تھی. جی ہاں, شاہ فیصل کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یا تو وہ سول سروسز میں واپس آ جائیں گے یا پھر وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ کا رخ کریں گے, یعنی کہ 7 سمندر پار جانے کی بات کریں گے. اس حوالے سے جو کنفیوژنز کریٹ ہو رہی تھی, ان کنفیوژنز کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ ہم ایک باضابطہ طور پہ اس پہ بات کریں, اور بات کریں ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ, پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ, اور دیکھیں کہ کیا کچھ صورتحال زمینی سطح پر ہے, کیا ضرورت پڑی شاہ فیصل کو اس وقت یہ سخت ترین فیصلہ لینے کی. اور بڑی بات یہ ہے کہ ناقدین کا ماننا تھا کہ شاہ فیصل جس صورتحال میں سیاست کے بیچ میں آئے تھے اس وقت کئی لوگوں نے طنز بھی کیے تھے, اور کئی لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ اسے ایک پروڈکٹ کے طور پہ یہاں پر استعمال کیا جائے گا. لیکن شاہ فیصل کو جب ہم نے گزشتہ اپنے ہی انٹرویو میں جو میں نے کسی دوسری چینل میں رہ کر کے کیا تھا, انہوں نے اس پر بتایا تھا کہ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنے کی شروعات کرتا ہے تو یہاں کوئی نہ کوئی لیبل ضرور لگ جاتا ہے. لیکن ناظرین کرام, آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر 35 اور 370 کو ختم کرنے کی بات کی گئی
तो उस वक्त अप्रैल के महीने से ही यहां पर चमेगोइयां शुरू हो गई थी कि अगर हम 2019 की बात करते हैं कि हालात जो जम्मू कश्मीर के हैं वो अचानक कोई पलटा खाने वाले हैं, और इस अंदाज में यहां पर पार्टियों के बयानात जो थे वो बहुत ज्यादा सख्त तरीन हो गए थे। कई एक बड़े डिबेट्स हुए और बिल आखिर आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के जरिए दोनों ऐवानों के जरिए 35 और 370 को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया। और जैसा कि मैंने कल अपने प्रोग्राम में बताया था आपको कि 35 और 370 के हवाले से अब एक ही ऑप्शन बचता है और वो बचता है सुप्रीम कोर्ट का। और जिस हवाले से हमने जब सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम मुजफ्फर शाह की बात करते हैं, तो उन्होंने आपको तफसील से मेरे साथ ही गुज़श्ता दिनों या हफ्ते की रोज जो इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारे पास एक ही इस वक्त ऑप्शन बचता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। लेकिन जो जमीनी सूरत हाल है उसके हवाले से आपको बताए देते हैं कि 35 से 370 के मामले को लेकर के और बीच में जो शाह फैसल की तरफ से अचानक कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए। हालांकि शाह फैसल खुद अभी मीडिया के सामने नहीं आए और वो खुद तजज्जुब के बीच में है कि उन्हें क्या वाकई तौर पे 7 समंदर पार जाना चाहिए या यहां जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आकर के वापस अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। जैसे वो सबको मालूम है कि पहले जम्मू कश्मीर के ऐसे युवा थे जिन्होंने ये कह सकते हैं कि IAS के टॉपर रहे और इस तरह से उन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो रोशन किया था। एक जवान साल होने के साथ साथ जहां उन्होंने अपनी तरबियत के हवाले से आपको बताए देते हैं कि बहुत ज्यादा सख्तियों के बीच में पहले MBBS को क्वालिफाई किया और उसके बाद JVC के अंदर वो डॉक्टर रहे। और इस तरह से बाद में उनके दिमाग में यह बात आई कि शायद बहसत एक डॉक्टर वो अपनी कौम की खिदमत नहीं कर सकते या उनके ख्वाब बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान के थे, तो उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि वो IAS के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और उसके लिए चूंकि उनको थोड़ी सी राह मिल चुकी थी और वो एक देहात से आए हुए आम आदमी थे और उन्होंने जब IAS के एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और उसके साथ ही मुल्क में टॉप कर गए, तो शाह फैसल की उड़ान से अंदाजा लग गया कि देहात से आया हुआ आदमी और बहुत ही मतलब एक ये कह सकते हैं कि ऐसे हालात में घर छोड़ के आने वाला इंसान भी कभी भी कोई ऊंची परवाज भर सकता है। ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का नाम उन्होंने पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में रोशन कर दिया था। बैरिकैफ अचानक फिर जब 35 से 370 की बात आई और मुल्क के अंदर कुछ इस तरह के मामला आए जिसको लेकर के शाह फैसल ने, खासकर जब आसिफा की असमत रेजी का मामला आया, तो उस वक्त उनके कुछ ट्वीट्स आने शुरू हो गए जिन ट्वीट्स को लेकर के आम आदमी को यह पता नहीं था कि शाह फैसल बहसत एक ब्यूरोक्रेट होके भी अपने ट्विटर का इस्तेमाल करते रहे और अपने ट्वीट्स के जरिए उन्होंने कई एक जगह पर ऐसे मामलात की तनकीद की जिस तनकीद के चलते उनको कई एक मर्तबा कई एक नोटिस का सामना भी करना पड़ा और कई जगह पर उनको मुल्क के अंदर भी ऐसा लगा कि शायद अब उनके लिए ये कुर्सी या ये ओहदा सूट नहीं करता है, या उनको लगा कि उनको जिस अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक लंबी छुट्टी ले ली थी और उस छुट्टी के बाद वो अचानक अमेरिका चले गए जहां पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने न सिर्फ पढ़ना शुरू किया बल्कि पढ़ाना भी शुरू किया। और इस तरह से वो काफी देर तक पहले अमेरिका के अंदर बैठे रहे और उसके साथ ही जब वो वहां से अपने ट्विटर का इस्तेमाल करने लगे तो उनकी धुआंधार ट्विटर पर जो बातें लिखी जाने लगी, उन्होंने कश्मीर के अंदर उनके लिए एक स्पेस बनानी शुरू कर दी और लोगों की तरफ से यह मुतालबा आना शुरू हो गया कि शाह फैसल को फौरी तौर पर वापस आ जाना चाहिए और यहां पर एक सियासी कयादत जो है उसका रोल इख्तियार करना चाहिए और वो सियासत के अंदर आ जाने चाहिए। बहरकैफ शायद शाह फैसल जिस कुर्सी को यहां से छोड़ के गए थे, जो IAS टॉपर यहां पर रह चुके थे, जिस मकाम से गए थे और अमेरिका चले गए थे, और यह लगता था कि कहीं एक जगह पर जो हुकूमत है और बहसते एक सरकारी मुलाजिम की उनकी जो वो टकराव था वो शायद उसको लेकर के भी जब अमेरिका के अंदर बैठे तो उनने भी मन शायद बना लिया था कि अब उन्हें नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहरकैफ बाद में जब उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से बात की और जब वो अमेरिका से ही ट्वीट करने लगे कि जब वो कश्मीर वापस आएंगे तो यहां पर वो आकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो उन्होंने यहां पर अपने ही उन फैंस से पूछना शुरू कर दिया कि क्या शाह फैसल को किसी जमात को ज्वाइन करना चाहिए या कोई
कोई अपनी जमात बनानी चाहिए। बहरकैफ जब शाह फैसल ने यहां पर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट बनाने की बात कही तो बड़े पैमाने पर खैर मकदम हुआ और इस तरह से उन्होंने कुफवारा से जब शुरुआत की तो आप सब जानते हैं कि उस वक्त जो सूरत हाल थी ऐसा लगता था कि वो एक स्टार के तौर पर उभर करके आ जाएंगे और उसके चलते फिर पार्लिमानी चुनाव आए तो उसमें उन्होंने बजाते खुद अपनी पार्टी की कोई शिरकत नहीं रखी और इसके बदले उन्होंने एक उम्मीदवार का सपोर्ट भी किया। लेकिन शाह फैसल अपने आप को किसी जगह पर सियासी सतह पर शायद यह समझते थे कि वो एक लंबी बैटिंग यहां पर करेंगे और इस तरह से शायद असेंबली इंतखाबात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। लेकिन शोमाई किस्मत ये कि उनकी सियासत में जो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी मिसाल बन सकती थी वो इसलिए नहीं बन सकी कि 35A का मामला आया, 370 का मामला आया और इन तजादात के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जो खेल थे वो लगभग सुकड़ने शुरू हो गए और अप्रैल के महीने के बाद ही 2019 के बाद यहां पर सियासी तगय्युर और तबद्दुल कुछ ऐसे होने लगे कि आए रोज सियासतदानों और सियासत के उफक पर कई एक जगह पर बादल गिरते नजर आ गए और इसके चलते आपने देखा कि जब 5 अगस्त को यह फैसला आया तो उसमें शाह फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब गिरफ्तारी के बाद तब से आज तक 1 साल की मुद्दत बिल्कुल कंप्लीट हो गई। शाह फैसल का यह कह सकते हैं कि शाह फैसल के बारे में फिर कई कयास होने लगे, लेकिन शाह फैसल कोई बयान इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वो अगर यह कह सकते हैं कि उनको रिहाई भी मिली लेकिन घर के अंदर उन्हें नजरबंद कर दिया गया, जिसके चलते वो कोई बयान नहीं दे सके, जिस तरह कई दीगर सियासतदान जो यहां पर हैं वो अपने बयान नहीं दे पा रहे हैं। बहरकैफ आज की जो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये है कि शाह फैसल शायद, जहां तक हमें अंदाजा है, लोगों का असरार है और साथ में बड़ी बात यह है कि कई एक जब यहां पर नाकदीन से हमने बात की, मुबसरों से बात की, तो उन मुबसरीन का मानना है कि शाह फैसल यहां के एक बहुत ही बड़े दिमाग के तौर पर काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि किसी भी जगह रह करके वो अपनी काबिलियत से लोगों की खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि सियासत यहां पर 370 के खात्मे के बाद सुकड़ती हुई नजर आ रही है और 35 से 370 की जो सूरत हाल है वो किसी भी तरीके से वापसी की डगर की तरफ आती दिख नहीं रही है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो इसका सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है उसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर के भी यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला तो साल से यह केस चलता रहा और बिल आखिर यह कह सकते हैं 15 या 20 वर्ष के बाद इसमें कोई फैसला आया। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या 35 से 370 को वापस लाने के लिए जो यहां पर कयादतें काम कर रही हैं, क्या वाकई तौर पर सुप्रीम कोर्ट उनको इस बात में कोई उनके हक में फैसला देता है या नहीं देता है, एक अब लंबी बात है और इस बात के लिए इंतजार की भी शायद जरूरत पड़ सकती है। और शाह फैसल का इस दौरान यह फैसला लेना कि क्या उन्हें सियासत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कई लोग मानते हैं कि बिल्कुल शाह फैसल को एक सियासी कायद की हैसियत से काम करना चाहिए। लेकिन आज जब मैंने उनके पार्टी में रहे बहुत ज्यादा नजदीकी लोगों के साथ बात की जो पार्टी में बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनका भी यह मानना था कि शाह फैसल जैसी शख्सियत को अगर यहां पर असेंबली इंतखाबात लड़ने पड़ते हैं तो वो एक आम क्लर्क की हैसियत से जब काम करेंगे वो किसी के लिए भी न वो खुद मुतमीन होंगे न वो काम किसी के लिए मुतमीन करने वाला कर सकते हैं। इसलिए बेहतर उनके लिए यही होगा कि अगर उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो सियासत नहीं करेंगे, यानी कि शाह फैसल ने यकीनी तौर पर आज भी जब उनकी कुछ पार्टी लीडरों के साथ जो उनके जेकेपीएम के लीडरान हैं उनके साथ बात हुई तो शाह फैसल ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि अब वो सियासत के अंदर अपने आप को महफूज समझते हैं, यानी कि जब वो लोगों का कोई काम ही नहीं कर पाएंगे तो ऐसी सियासत को क्या करना है। तो इस चीज को लेकर के मानना है कि अगर शाह फैसल ने वाकई तौर पे अब सियासत को छोड़ना ही है तो 2 ही रास्ते बचते हैं। एक ये कि शाह फैसल फौरी तौर पर, जैसा कि पहले ही इशारे पिछले दिनों से बार बार यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी दिए गए कि उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं किया गया है, यानी कि शाह फैसल जो है वो मुस्ताफी अपने ओहदे से हुए थे लेकिन उसके बाद एक क्लियरेंस मिलती है महकमों की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसके बाद उनका जो बाकी रिटायरमेंट के मामलात होते हैं वो तय हो जाते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि इनके जो सरकार के साथ लवाजिमात थे क्या वो क्लियर हो चुके हैं, किस तरह से हुए हैं और उसके बाद
میں ایک آدمی ریٹائر چاہے وہ اپنے مدت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لے یا وقت پر ریٹائر ہو جائے تو یہ چیزیں بعد میں مقرر ہو جاتی ہیں. لیکن شاہ فیصل کے کیس میں ایسا تھا کہ ٹویٹس کو لے کر کے جو ان پر کئی ایک جگہ پر نوٹسز نکلی تھی, ان نوٹسز کو لے کر کے بھی سرکار کا ماننا ہے کہ کئی جگہ پر اس میں کلیئرنس بھی آ گئی ہے اور کئی جگہوں پہ اب کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ طے ہونا باقی ہیں. اس کے بعد سرکار یہ فیصلہ لے گی کہ شاہ فیصل کا استعفیٰ جو ہے وہ شاہ فیصل اگر چاہیں تو واپس آ کر کے ایڈمنسٹریشن کے اندر جوائن کر سکتے ہیں. اب یہ بات ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی شاہ فیصل کو ایڈمنسٹریشن کے اندر آ کر کے کسی کرسی پر بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں اگر ہم جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جموں کشمیر کے اندر جو آئی اے ایس کی بات کرتے ہیں یا پی ایس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت کم افسران ہیں جو اس وقت کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں. جیسے کہ دی رپورٹر نے پچھلے دنوں ایک اپنی مفصل رپورٹ لکھی ہوئی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ کل ملا کر کے کشمیر کو چلانے کے لیے جو اس کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس میں کشمیریوں کا کس جگہ پہ رول بنتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کئی پارٹی کے لیڈران نے, جس میں اپنی پارٹی بھی تھی, انہوں نے الزام لگایا کہ کشمیر کے لوگوں کو بالکل اب موقع نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے. اگر شاہ فیصل کی واپسی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہو جاتی ہے اور وہ بھی ایک سینئر آئی اے ایس آفیسر کی حیثیت سے, تو ایسا ضرور ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بجا طور پر خدمت بھی کر سکتے ہیں اور کئی جگہ پر اپنے لوگوں کو انصاف بھی دلوا سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم کچھ چھوٹے موٹے کٹس جو آج آپ کو شروعات میں بھی دکھائے اور بعد میں بھی دکھانے کی کوشش کریں گے, آپ یہ کچھ کٹس دیکھ لیجئے اور اس کے بعد ہم آپ سے کریں گے کچھ اور بات. اپنے درشکوں کو یاداشت کے لیے یہ بتا دیجئے کہ آخر شاہ فیصل نے ایسا کیا کیا تھا جو پورے ہندوستان کے اندر, جو پورے جموں کشمیر کے اندر چاہتے تھے. اچانک آپ نے ایسا کیا ٹویٹ لکھا تھا کہ آپ کو ایک تضادات کے گھیرے میں آنا پڑا اور اس کے بعد کافی دیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بالکل ہی مطلب بھارت کے طرف آئے نہیں اور سات سمندر پار بیٹھ گئے. دیکھیے بار بار جب بھی پچھلے کچھ سالوں سے مجھے موقع ملے ہیں بات کرنے کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں, انسانی حقوق کے بارے میں, یا کشمیر میں جس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی یا جس طرح سے ریاست جموں کشمیر میں بھائی چارے کو اس کو خراب کرنے کی کوششیں کی گئی, ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی, اس میں نے بار بار بولا. اور کئی بار ایسا ہوا بھی کہ میرے اور سرکار کے بیچ میں تلخیاں پیدا ہوئی, مجھے شو کاز نوٹسز ملے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں امریکہ بھی چلا گیا. وہاں میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں نے داخلہ بھی لیا. تو میرا ماننا ہے کہ یہ چیزیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو ہمیشہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ حق کی بات کروں اور حق کا ساتھ دوں, اور فائنلی اسی کا نتیجہ یہ ہوا شاید کہ مجھے ایک دن مجبور ہو کے اپنی نوکری بھی چھوڑنی پڑی. اگر آپ کو لگا کہ وہاں پہ کرپشن تھی, لگتا ہے آپ کو کہ سیاسی کرپشن کو آپ یہاں پر ختم کر پائیں گے؟ دیکھیے بہت بڑا چیلنج ہے, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ایک نظام کو بدل دیں گے اور ایک فرد ساری دنیا کے ساتھ لڑائی کر کے پھر اس نظام کو بدل سکتا ہے. میں صرف امید کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ اوپر کی کرپشن کو ختم نہیں کریں گے تب تک آپ پٹواری صاحب کو, تحصیلدار صاحب کو, جونیئر انجینئر صاحب کے گلے میں پھانسی ڈال کے آپ سماج کو سدھار نہیں سکتے ہیں. سیاست, سماجی جو چینج ہوتی ہے, سماجی تبدیلی ہوتی ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ لازمی ایک عنصر ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست صاف ہو. تب تک شاہد صاحب میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, میں اس سسٹم میں رہا ہوں, جب تک اوپر تبدیلی نہیں آئے گی تب تک نچلی لیول پہ تبدیلی بالکل نہیں آ سکتی. قاتل بھی اور مقتول ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری زبان ایک ہے, ہمارا مذہب ایک ہے, اس کے باوجود جب انصاف دینے کی باری آتی ہے اس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. جب اب ڈسپیوٹ کی بات آتی ہے یا جب ڈائلاگ کی بات آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کبھی قریب آ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ مجھے لگتا ہے غلط فہمی ہے بھارت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ کشمیریوں کو, جموں والوں کو, لداخیوں کو آن بورڈ لیے بغیر اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. اگر دو ممالک کو لگتا ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کریں گے تو ذرا وہ کر کے دکھائیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ الیکٹورل مین سٹریم جو ہے یہ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول نبھا سکتی ہے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے فیسیلیٹیٹر کا, تاکہ یہ دو پارٹیز آپس میں ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات کریں. اور ان پارٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیر میں ماضی میں ایسی لیڈرشپ رہی ہے جو 22 سال جیلوں میں بیٹھے ہیں, 30 سال جیلوں میں بیٹھے ہیں. میں آپ کی وساطت سے پورے عوام سے یہ آج کہنا چاہوں گا کہ شاہ فیصل کو اگر اپنی پوری زندگی جیل میں دینی پڑے گی,
अगले 45 साल तक मुझे जेल में रहना पड़ेगा। हम जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत है, इसके जो सियासी हकूक हैं, उन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए, मैं हक की बात आपसे कहता हूं कि मैंने पहले सोचा कि मैं किसी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाऊं। ओके। आज भी जब लोग सवालात उठाते हैं और बोलते हैं ये आईबी एजेंट है, रॉ एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि मैं कहता हूं मैंने ये फैसला आपके कहने पे किया है। ओके। अगर शायद मैंने ये फैसला अपने कहने पे किया होता तो शायद आपकी नुक्ताचीनी हक बजानिब थी, लेकिन आपने मुझे हाथ पकड़ के मजबूर किया कि मैं किसी सियासी जमात के साथ शामिल न हो जाऊं और अपनी एक निजी, अपनी एक अलग सी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं जिसका एक अलग सा मंशूर होगा। आज जब कुछ मेरे सियासी जो राइवल्स हैं, जिनको इससे दुख होता है कि ये उनकी पार्टीज में क्यों नहीं मैं गया, वो इसकी नुक्ताचीनी करते हैं, तो मुझे इस बात का ताज्जुब होता है कि हमारे लोग सोचते कैसे हैं। लेकिन मैं अपने आप को इस रियासत का एक बाशिंदा समझता हूं। मेरे लिए कठवा और कुपवारा में कोई फर्क नहीं है, और अल्लाह ताला का करम यह है, शायद उस जज्बे की, उस नीयत की वजह से आज जितना प्यार मुझे हीरा नगर में मिल रहा है, आरसपुरा में मिल रहा है, नौशेरा में मिल रहा है, जो मेरे यहाँ कश्मीर के भी इलाके नहीं है, जिस तरह से मेंढर पुंछ के लोग, चिनाब वैली के लोग मुझे मोहब्बत देते हैं। मेरा मानना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिटीज को डिवाइड करने पे यकीन रखती है, मुझे लगता है उनके साथ काम करना मुनासिब नहीं है, और वो कौम की, वो रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। उनको छोड़ के जो भी सेक्युलर नजरिए पे बिलीव करते हैं, भाईचारे पे बिलीव करते हैं, जो भी बिलीव करते हैं कि इस रियासत की स्पेशल स्टेटस एक यूनिक चीज है, एक वादा है जिसको निभाना पड़ेगा, मुझे लगता है सब लोगों को उनके साथ चल सकते हैं, उनके साथ मिलजुल के काम। जो कौम को बेचते हैं, पहली जिम्मेदारी उनकी होती है। मैं पहली जिम्मेदारी देता हूं उनको जो यहां बरसरे इक्तदार रहे हैं पिछले 70 साल से, जिन्होंने कौम को बेचा। खरीदने वाले आपको मैसर हमेशा मिलेंगे, कभी कांग्रेस खरीदेगी, कभी बीजेपी खरीदेगी। मैं उस दिन की तवक्को करूंगा जिस दिन कौम को बेचने वाला कोई आपको मिलेगा नहीं, और हम इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि कौम के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो ये खरीदो फरोख्त हुई है 1846 से लेकर आज तक, इस निजाम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या फायदा है सरकारें बनाने का जब आप फाइनली यहाँ पे कत्ल का, खून का बाजार आप गर्म कर पाए? मेरा मानना है कि जो भी सियासी जमातें हैं उनको समझना चाहिए, अगर वो यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं दे पाते हैं, उनको घर बैठना चाहिए। जी हां, आपने नाज़रीन देखा कि शाह फैसल ने अपने जो ख्यालात का इजहार किया, इस दायरा इख्तियार के अंदर रह करके अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल हट के है। और जिस वक्त शाह फैसल का ये इंटरव्यू किया था, ये 28 अप्रैल 2019 की बात है, और आज की जब हम बात करते हैं तो आज आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त हम अगस्त की बात करते हैं, और वो भी 2020 की, यानी कि तब से 1 साल से ज्यादा अरसा होने वाला है, और तब से अभी तक की जो पोजीशन है वो बहुत बहुत बदल चुकी है। और इस 1.5 साल के अरसे में जो यहां पर जमीनी तब्दीली आई, इसको लेकर के अवाम खुद फैसला कर सकते हैं कि ऐसे बेहतर दिमाग को हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वाकई तौर पर वो चाहे तो यहां पर एक बड़ी एकेडमी भी अपने तरीके से खोल सकते हैं, जहां वो अपने उन बच्चों को जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको एक स्पेस दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर सियासत में यह कह सकते हैं कि कोई इस तरह का कभी मौका मिलता है जिसमें अगर 370 कभी वापस आ जाता है या 35A वापस आ जाता है, या उस तरह की सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनती है जहां पर खुद लोग यह फैसला करेंगे कि क्या शाह फैसल को आप कुर्सी पर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, तब अगर वो आप इस्तीफा देते भी हैं तो बात बनती है। लेकिन अभी जो उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने तो नौकरी छोड़ी, लेकिन उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है। बहरकैफ पार्टी के जराया का कहना है, और खासकर अगर हम फिरोज पीरजादा की बात करें या दीगर लीडरान की बात करें, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यह बात बताई कि शाह फैसल का किसी भी तरीके से अब यह मन नहीं बन रहा है कि वो खुद आकर के पार्टी के अंदर एक लीडर की हैसियत से काम करें, क्योंकि उनका कहना है कि जो पार्टी यहां पर जिस मकसद के लिए बनाई गई थी कि किस अंदाज में हम यहां पर हर इलाके से अपने नुमाइंदों को उठा करके लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अब शायद सियासी सूरत हाल जम्मू कश्मीर की ऐसी नहीं रही है कि फिलहाल यहां पर लोगों की
सियासत के जरिए कोई बड़ी खिदमत की जा सकती है। शाह फैसल का अपना फैसला है, हो सकता है कि वो बेहतर सोच रहे हूं, यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने उनके साथ उम्मीदें बांध के रखी हूं वो उनसे कई जगह पर नाराज भी नजर आए। लेकिन यह बात भी सही है कि एक IAS टॉपर को अगर चाहें तो उनकी जो सर्विसेज हैं उनको अगर बेहतर तरीके से वाकई तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया जाए और उनकी खिदमत को हासिल किया जाए तो हो सकता है गरीबों का कुछ बड़ा हो सके। बहरकैफ ये फैसले फिलहाल हम उन पर सोचते हैं और साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आइंदा कुछ प्रोग्रामों के बाद कोशिश करेंगे डायरेक्टली शाह फैसल को यहां पर बुलाने की और आपसे रूबरू करने की और याद दिलाएं उनको उनका 28 अप्रैल 2019 का वो इंटरव्यू जो उन्होंने हमारे साथ किसी दूसरी चैनल में दिया था। बेशक यहां पर चैनल्स हम लोग बदल सकते हैं, बाकी चीजें बदल सकते हैं, लेकिन सरजमीन एक है, ख्यालात एक हो सकते हैं हम सबके, और यह भी हो सकता है कि किसी जगह पर हमसे भूल चूक हो सकती है। लेकिन अगर बेहतर दिमाग को इस्तेमाल करके हम अपनी गलती को कहीं पर दुरुस्त करने की कोशिश करें तो एक बेहतर मुस्तकबिल की बात हो सकती है। बहरकैफ फिलहाल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के शुमारे से हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।